Hello everyone. So I've prepared one video for all those who are preparing for CAT from this month onwards. They are basically not aware that how many quant topics are there, what are the important quant topics in CAT, and what should be the order of preparation. Generally, what mistake people do, they start with algebra or some other block which should not be the first block to start with. So in this video, I'm going to cover everything. The agenda of this video is we are going to cover all CAT quant topics. This is not will cover only CAT. This will cover everything related to ZAT, IFT, SNAP. Every other block will be covered. Every other exam will be covered in this video. What should be the order of covering these topics, right? There should be a particular order in which you should cover these topics. Number of question which has been appeared in previous year CAT from each block. So you will get the importance and weightage of each block, right? And how much time you should spend on each quant topic or each block. So after this video, your all queries or doubt related to quant will be over. So watch the video till the end. And if you like it, then definitely write it in the comment box as well and like the video as well. Okay, so let's begin the video. Now, if we divide the whole quant syllabus, I can divide the whole quant syllabus into these 5 block, guys. This is arithmetic, numbers, geometry, algebra, PNC, probability. I generally name these terms or in other educator also. I think you are aware about this term. We call it as ARG. So ARG is related to, that is arithmetic, algebra and geometry. These are the 3 main blocks of any quant topics which is related to any exam, right? Whether it is ZAT or IFT, these are the 3 most important blocks, no doubt about it. Arithmetic, algebra and geometry. So that is we called ARC. But if we, let's say, consider the other 2 block as well, so if I added the number system, that will become NAG. That is given by, this abbreviation is given by me only. So ये मेरा खुराफाती दिमाग कुछ करता रहता है. So this is numbers we have added besides arithmetic, algebra and geometry. And if I added PNC as well, then this will become NAG and Panchami, P. So this will become PNC and probability. So this is the whole syllabus of quant topic, guys. इसके अलावा there is no other block. These are the 5 major blocks: arithmetic, algebra, geometry, numbers and PNC, probability. And rest everything can be covered in miscellaneous, or every other topic can be come under these blocks only. Now what should be the order of preparation? I generally suggest, guys, the order is written in this manner only. So arithmetic or numbers should be your first or second block. You should not start with any other block except arithmetic or numbers. So either arithmetic can be your first block and then number 2, या फिर arithmetic can be 2 or number can be 1. These 2 should be the first 2 block, right, in any order. Then third block should be geometry, then algebra, and then PNC, probability and miscellaneous courses. This should be the order of preparing well, because if you do not cover numbers, then definitely you are going to miss certain things in algebra as well, like integers क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं. रिमाइंडर में जब आप पॉलिनोमियल में रिमाइंडर निकालोगे वहां पे अटक जाओगे. एलसीएम एचसीएफ की जरूरत आपको अर्थमेटिक में भी पड़ेगी. तो नंबर्स के जो टॉपिक हैं वो ऐसा जगह डायरेक्ट नहीं भी आ रहे हैं, लेकिन बाकी सब जगह आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो पीएनसी प्रोबेबिलिटी हो या फिर अलजेब्रा हो या फिर ज्योमेट्री में पाइथागोरस, ट्रिपलेट एंड ऑल वो सब चीज़ें भी हों. तो आई जनरली डू नॉट सजेस्ट कि आप अलजेब्रा से शुरू करो, राइट, बिकॉज बिफोर अलजेब्रा योर बेसिक शुड बी क्लियर. So the order should be arithmetic, numbers, geometry, algebra, PNC, probability. How much time we need to spend, that we look for in other slides. कितना टाइम देना चाहिए, किस ब्लॉक पे कितने क्वेश्चन आते हैं, everything I'm going to cover. So let's look at one by one. If we talk about arithmetic, guys, what are the major topics under arithmetic? So if we talk about arithmetic section, guys, these are the major topics. That is percentage, profit and loss, ratio and proportion, partnership, averages, allegation, mixture and solution, SICI, time and work, and TSD. So to cover this whole block, I'll suggest, let's say if we talk about the number of classes or number of hours, if we talk about, so I'm talking about the number of classes. So you can take every class as 2 hours,
and then you can determine yourself that how much time you need to spend to cover the whole block. Let's say I take it generally 3 to 4 classes for percentages. 2 classes are more than enough for profit and loss. Ratio and proportion, again I take it 3 classes. Partnership can be covered here itself, so maximum one. Averages this time or in few years, averages has become very important, guys. So averages 2, allegation 2, mixture and solution is also 2. SICI, you can cover it in 1.5, 2 classes. So I'm giving 2 maximum. Time in work is again an important topic. So 3 to 4 classes here also. And time, speed and distance is the most important topic of this arithmetic. So time, speed and distance, I take it around 5 to 6 class, even more than that. So if I add it minimum to maximum, 3 to 4, 5, 8, 8 plus 5, 13, 15, 17, 20, 25 is the minimum. कम से कम इतनी क्लासेस अगर आपको ढंग से कवर अप करना है कोई भी चीज को, ठीक है. एंड मैक्सिमम आई कैन ऐड 1 हियर और आई कैन ऐड 2 हियर. सो 25 to 30, आई एम टेकिंग द मैक्सिमम. 25 to 30 क्लासेस में आपका कवर हो जाना चाहिए. तो इफ वी टॉक अबाउट 2 hour क्लास, then 50 to 60 hour, guys. 25 to 30 classes you need to spend on arithmetic alone, because in the later stage we will see the weightage also of arithmetic. तो अगर आप खाली ये arithmetic भी कर लेते हो तब भी आपको शायद you will surprised to see what is the weightage and what is the importance of arithmetic. So why I'm giving these many classes, because this has become most important topic of the whole syllabus, guys. तो arithmetic आप lightly नहीं ले सकते, इसको आपको डिटेल में करना ही पड़ेगा. तो आई एम गिविंग यू अराउंड 50 hours के आसपास जिसमें आपको अर्थमेटिक कवर अप करना चाहिए. नाउ एज द पेपर विल मूव ऑन, as you will approach nearer to the exam, then definitely your time frame will be reduced slightly. Let's say if you start preparing in the month of June or July, then definitely this is going to be covered in less classes as well, because तब हमारे पास उतना टाइम नहीं होगा. तो right now I'm sure you can spend this much time on this particular block. बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना टाइम आपको देना चाहिए. तो ये आप टॉपिक नोट करते जाओ, इसमें से आपको एक भी टॉपिक मिस नहीं करना है. दिस इज द ऑल अर्थमेटिक टॉपिक, कुछ नहीं करना है इसके अलावा. आई हैव रिटन एवरी block, I have every chapter from arithmetic area. Similarly, we talk about number system. Number system के अंदर we cover classification of numbers, unit digit, last 2 digit, factors based question, factorial, or generally people say number of zeros at the end. If you have seen in the book, they name it as number of zeros. LCM SCF has become most important topic of numbers. इसको मिस नहीं करना है. तो आई एम राइटिंग, अगर मेरे से आप अर्थमेटिक में पूछोगे तो आई विल राइट इट परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेजेस एंड टीएसडी एंड टाइम एंड वर्क. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं. अगर आप मेरे से पूछोगे अर्थमेटिक के, इनको आपको ढंग से करना है. परसेंटेज विल डेफिनेटली इज गोइंग टू बी यूज्ड इन डीआई एज वेल. तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज स्पेसिफिकली, एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क. तो ये ब्लॉक आप कर जाओ. आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक से ही आने वाले पूरे पेपर में, भी हम देखेंगे बाद वाली स्लाइड. तो LCM SCF has become the most important chapter of numbers, एंड क्लासिफिकेशन में आपको बेसिक सारी चीजें पता चल जाएंगी, क्या क्या तरह के नंबर्स होते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इसके लिए आई थिंक गाइस, मैंने जैसे अभी नंबर्स कवर कर रहा हूँ, मैं आज से ही शुरू हो रहा है मेरा 1 मई से. तो 14-15 लेक्चर्स में आपका नंबर्स पूरा ढंग से हो जाना चाहिए. तो अगर आप इस पर थोड़ा कम टाइम भी दोगे चलेगा, क्योंकि अभी इसका वेटेज थोड़ा सा कम हो गया है. लेकिन आई विल सजेस्ट कि अभी आपके पास टाइम है, तो आई थिंक यू शुड प्रिपेयर वेल. नंबर्स अभी आप पूरा करना चाहिए, आपको कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना है. दीज आर द ऑल टॉपिक्स फ्रॉम नंबर्स. Geometry and mensuration, again guys, a very important block. We cover triangle, circle, quadrilateral based question, and these are the mixture also. ऐसा नहीं कि जब हम quadrilateral कर रहे होंगे तो हम triangle और circle use नहीं करेंगे. So this is all combined: polygon, mensuration, and coordinate geometry. So again, 15 classes approx is more than enough. People take 30 classes as well, but I do not think अगर आप ढंग से करते हो तो 15 classes के अंदर भी we can cover everything. ठीक है, 30 आवर्स के आसपास अगर आप ज्योमेट्री में लगा देते हो, आई एम श्योर आपका ज्योमेट्री ढंग से हो सकता है. तो आप टॉपिक नोट करते जाओ. अभी हम इसका वेटेज देखने वाले हैं आगे जाके कि किस किस ऑर्डर में हमें प्रिपरेशन करना और कितने क्वेश्चन किस ब्लॉक से आ रहे हैं. तो उसी हिसाब से आप अपना टाइम डिवाइड कर सकते हो कि भैया इसमें इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वी नीड टू स्पेंड दैट मच टाइम ऑन दैट पर्टिकुलर ब्लॉक. अलजेब्रा, नाउ दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक ऑफ योर होल सिलेबस गाइस. इसके अंदर टॉपिक है लीनियर इक्वेशन, जिसमें एजेस वगैरह, डिजिट वगैरह के क्वेश्चन आते हैं. स्पेशल इक्वेशन अगेन इंपॉर्टेंट. क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
वेरी इंपॉर्टेंट, इनइक्वालिटीज, मॉड्यूलस, मैक्सिमा, मिनिमा, प्रोग्रेशन जिसको हम सीरीज भी बोलते हैं, फंक्शन एंड ग्राफ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लॉगरिथम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सर्च एंड इंडाइसेस, एक्सपोनेंट ऑफ पावर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया गाइस। तो ये पूरा जो अलजेब्रा है ना, इसका एक एक टॉपिक, मैं इसमें कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट या लीस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, इसका आपको सारे टॉपिक करने हैं, बिकॉज किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बल्कि हम हर एरिया से आपको एक एक दो दो क्वेश्चन मिल सकता है। लॉग आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, फंक्शन एंड ग्राफ आ ही रहा है, प्रोग्रेशन भी एक दो क्वेश्चन आपको हर हर एरिया से कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो यू कैन नॉट इग्नोर एनी ऑफ द टॉपिक। इसके लिए आपको लगेंगे काफी सारे टाइम। इसके लिए लगभग अगेन जैसे अर्थमेटिक में आपको टाइम लगा था, ऐसे ही इसमें भी आपको लगभग टाइम लगने वाला है 25 to 30 क्लासेस, लगभग 50 to 60 आवर्स। दैट इज अ टोटल टाइम यू शुड स्पेंड ऑन दिस पर्टिकुलर ब्लॉक, क्योंकि अर्थमेटिक और एल्जेब्रा गाइस, अगर आपने इन दो पे टाइम लगा दिया आपका पूरा सिलेबस खत्म है। ये मत सोचो कि ये तो बहुत ज्यादा टाइम, ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। अगर आप ढंग से कर रहे हो, आपको ये दोनों ब्लॉक ढंग से करने ही करने हैं। अभी जब हम आगे चलेंगे तो आई थिंक योर ऑल द डाउट्स विल बी क्लियर कि हम ये दोनों ब्लॉक पे इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं। बाकी छोटे ब्लॉक है, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, मिसलेनियस, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन जिसमें सिलेक्शन आता है, परमुटेशन जिसमें अरेंजमेंट आता है, ग्रुपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन। सो दिस बेसिकली बिकम्स मोर important not in CAT but other exams like ZAT will ask, SNAP will ask, CMET will ask one or two questions. So for rest of the exam this becomes important, not for CAT. Similarly, miscellaneous B, it's again not very many questions asked from miscellaneous area. I have put it separately because I cannot club it with any of the previous blocks like stats, mean, median, mode type of questions. Set theory again we generally covered in the name of Venn diagram in LR, but it can be asked in quant as well. Trigonometry में generally they can ask one or two questions based on height and distance based question, and stocks and share, this is again a small topic. So I do not think that you should spend much time, even if you spend 10 to 15 hours, that 5 to 6 classes PNC probability can be covered, and one or two classes miscellaneous courses can be covered. I will not suggest that you should spend much time on that particular block. So I think इसके अलावा I have written every topic. I do not think you should spend much time on remaining areas. कुछ भी नहीं करना है. Generally people or student, what mistake they do, they spend much time on certain areas which is not very important, and they spend less time on certain area which is very important. You cannot devote too much time, and you cannot spend very less time on important topics and too much time on non important topic. तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टाइम आपको लगाना चाहिए. पीपल गो इट इन वेरी डिटेल, ज़रूरत नहीं है यार, इतना करने की ज़रूरत नहीं है. आपको वो समझ में आएगा भी जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर एरिया के देखेंगे. तो लेट्स लुक एट द नंबर ऑफ क्वेश्चन विच हैज अपीयर्ड इन पास्ट ईयर्स. कितने कितने क्वेश्चन हर ब्लॉक से आए हैं, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि कौन सा ब्लॉक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना टाइम हमें हर ब्लॉक के लिए देना है. इस पेज का प्रिंट आउट ले लो. इस पेज पे पूरा आपका सिलेबस लिखा हुआ है. जो जो करते जाओ, टिक लगाते जाओ, जो रह गया है उसको कवर करते जाओ. ये पूरा सिलेबस मैंने एक जगह लिख दिया है आपका. अगर आपने ये पूरा कर लिया मतलब आपका पूरा सिलेबस हर एग्जाम का, सिर्फ कैट का नहीं, फॉर एवरी एग्जाम हैज बीन कवर्ड. इसका प्रिंट आउट लेके आप लगा लो और एक एक टॉपिक करते जाओ कवर, टिक मार्क लगाते जाओ, छोड़ना नहीं है कोई भी टॉपिक. और बहुत ज़्यादा डिटेल में भी कुछ कुछ टॉपिक जैसे इनमें खासकर बहुत ज़्यादा टाइम आपको डिवोट करने की जरूरत नहीं है. इवन आई विल सजेस्ट नंबर्स में भी आप बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाओ, एक बार करो मोर देन एनफ. तो लेट्स लुक एट द नंबर ऑफ क्वेश्चन नाउ. Now we talk about, I'm taking basically 3 years guys, because तीन तीन slot थे, 2020 recent year, 2021, 2022. तो we are going to look at the details of each year कि किस ब्लॉक से कितने कितने क्वेश्चन आए हर स्लॉट में. तो अगर हम 2020 की बात करें जिसमें 26 क्वेश्चन थे, out of 26 question, now look at the number of questions from arithmetic area guys, it's around 11, almost 45% of the paper, आधा पेपर सिर्फ अर्थमेटिक एरिया से है. सिमिलरली 10 क्वेश्चन स्लॉट 2 में, 10 क्वेश्चन स्लॉट 3 में. सो लुक एट एल्जेब्रा एंड अर्थमेटिक. तो अगर आपने ये दोनों ब्लॉक ढंग से कर लिए, 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 26 आर कवर्ड फ्रॉम दीज टू ब्लॉक्स गाइस. कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है. मैं क्यों बोल रहा था, इतना एम्फेसाइज क्यों दे रहा था. नंबर्स के सिर्फ 3 क्वेश्चन आए हैं इस ब्लॉक में, और पीएनसी का एक भी क्वेश्चन नहीं है, मिसलेनियस का एक भी क्वेश्चन नहीं है. तो अगर आप ये दोनों ब्लॉक भी ढंग से कर लेते हो, 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 26, 10/13 जिनको परसेंटेज आता है, दे नो दैट इट इज 76.9%, 77% of the syllabus. And you know
हाउ मेनी क्वेश्चन आर नीडेड टू गेट 99 परसेंटाइल, वो मैंने एक और वीडियो बनाई है, अभी मैं वो भी दिखाऊंगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने करने हैं, कितना परसेंटाइल आ जाएगा, वो भी एक बार चेक कर लेना। नंबर ऑफ क्वेश्चन इन ईच सेक्शन एंड कितने क्वेश्चन पे कितना परसेंटाइल आता है, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल, मैंने एक और वीडियो बनाया है, अभी आप वो भी चेक कर लेना। तो आई थिंक ऑल योर डाउट्स विल बी क्लियर। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी 20 क्वेश्चन गाइस इन दोनों एरिया से आए हैं, और यहाँ पर भी 20 क्वेश्चन आए हैं, तो तीनों स्लॉट में 20-20 क्वेश्चन आए इन्हीं दोनों एरिया से। तो अगर आप पूरा यार इन पे मेहनत कर लो, इन दोनों एरिया पे, अगर आप बाकी कुछ नहीं भी करके जाते हो, क्या ही मतलब आपका फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा आप छोड़ के चले जाओ, क्योंकि कैट का एक चीज सर्टेन है, दैट इज अनसर्टेनिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी। तो यू कैन नॉट लीव एनी एरिया अनटच्ड। हो सकता है अभी तक नंबर 0 आ रहा है, हो सकता है अगले साल 5 क्वेश्चन आ जाए, जैसे जेट में हुआ था। जेट में इकट्ठे 7 क्वेश्चन आ गए थे नंबर से, अर्थमेटिक का एक ही क्वेश्चन आया था उस साल में, अभी रिसेंट ईयर की बात बता रहा हूं। तो आप ऐसा छोड़ के नहीं जा सकते कोई भी ब्लॉक के, ये नहीं करते हैं क्योंकि आ ही नहीं रहे, ऐसा नहीं है, करके आपको सब जाना है। लेकिन वेटेज डेफिनेटली इन दोनों एरिया का बढ़ता जा रहा है, और ये इसी साल में नहीं है, दैट इज कंसिस्टेंट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट ईयर। If we talk about 2021, again you can see there were 22 questions which you have to cover in 40 minutes. Obviously you cannot cover all 22 questions. तो आप अगर कितने क्वेश्चन करोगे मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि वो अगले वीडियो में देखना। Look at the questions which is appeared from arithmetic and algebra again, that is 17 out of 22. Similarly यहाँ पर भी 17 क्वेश्चन, यहाँ पर 16 क्वेश्चन आउट ऑफ 22। तो आप हर साल में वेटेज देखो इन्हीं दोनों का ज्यादा है, 2021 में भी इन्हीं दोनों एरिया का वेटेज ज्यादा है। अर्थमेटिक का वेटेज 10 आउट ऑफ 22, ऑलमोस्ट 50% वेटेज इज फ्रॉम अर्थमेटिक एरिया अलोन। यहाँ पे तो पूरा ही 50%, 11 क्वेश्चन आउट ऑफ 22 क्वेश्चन, और ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ये मैंने खुद से निकाला गाइस। तो आपको इससे एक्यूरेट डिवीजन कहीं और किसी भी वीडियो में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पीपल जनरली क्लब random topics here and there. This is exact topic which has been appeared from each of the areas. ज्योमेट्री में 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसका वेटेज पहले बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, नंबर्स का वेटेज पहले बहुत ज्यादा होता था, इन दोनों का वेटेज कम कर दिया गया है। अर्थमेटिक का वेटेज काफी बढ़ा दिया गया है, अलजेब्रा कंसिस्टेंट उतना ही है। ओके, 2022 की अगर हम बात करें तो अगेन 22 क्वेश्चन वर देयर, इन दोनों से मिला के लगभग 16 क्वेश्चन, अर्थमेटिक 17 क्वेश्चन, अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा अगेन 16 क्वेश्चन गाइस। तो 16-17 question out of 22 question, if you know that is 8 by 11, and 8 by 11 is 72.72%. तो आप खुद देख लो कि अगर आपने 72% पेपर कवर अप कर दिया तो यू विल गेट 100%। वो आप उसमें देखना वीडियो। तो मैं ये बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आपको आइडिया लग गया कि कितना टाइम किस पे देना है, किस ब्लॉक पे कितना टाइम देना है। पीएनसी प्रोबेबिलिटी एक ही क्वेश्चन आया पिछले 3 सालों में, तो इस पे बहुत ज्यादा टाइम मत देना, मिसलेनियस पे बहुत ज्यादा टाइम मत देना। इवन नंबर्स का वेटेज दिन पे दिन कम होता जा रहा है, एक ही क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि आप किसी भी ब्लॉक को कम नहीं कर सकते, आपको करके सब जाना है, लेकिन कितना टाइम किसको देना है, कितना इंपॉर्टेंस है, वो आप एक बार इससे आपको बहुत ज्यादा आइडिया लग गया होगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट, ये मैंने पूरा एक जगह लिख दिया है आपके लिए, तो आप देखो कंसिस्टेंटली अर्थमेटिक का वेटेज बहुत बड़ा है, अलजेब्रा का वेटेज बहुत बड़ा है। ये मैंने जो अभी आपको अलग अलग दिखाया था, आई हैव पुट इट इन वन स्लाइड, तो आप इसका भी प्रिंट आउट ले सकते हो, यू विल गेट ए फेयर आइडिया। ज्योमेट्री का वेटेज अगेन 3 to 4 क्वेश्चन एवरी ईयर, एंड नंबर्स अगेन 1-1-0, इस साल में 3 क्वेश्चन आए हैं। बाकी पीएनसी प्रोबेबिलिटी 0-1-0-1, मिसलेनियस अगेन 0-1-0। ओके, तो ये हमारे सारे टॉपिक है। मुझे नहीं लगता कि आपको इससे ज़्यादा डिटेल में कुछ भी पता करने की ज़रूरत है। अगर आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो, मैं अनअकैडमी पे क्लासेस लेता हूँ, आप जाके लोकेश अग्रवाल के नाम से सर्च कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लोकेश_अनअकैडमी, जहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ओके, सो वेरी गुड लक गाइस, बढ़िया से करना है, और मुझे नहीं लगता कि आपको आई थिंक किसी भी एरिया में कोई भी दिक्कत आएगी। ठीक है, गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, and if you like it then definitely write a comment and like the video also, and you can share it among your other friends as well. See you.